بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہینا شہزادی کا سلام. سب سے پہلے ناظرین آپ سب کو رمضان مبارک ہو. روزے داروں کے لیے آج میں بہت اچھا میسج لے کر آئی ہوں. رمضان کے مہینے میں عبادات کا کیا فلسفہ ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں دانشور محمد سعید اختر صاحب، جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ روزے کی حالت میں کیا چیز جائز ہے اور کیا نہیں جائز، اسلام میں کیا چیز ہمیں کرنی چاہیے، رمضان میں کیا نہیں کرنی چاہیے، اور عبادات کا کیا طریقہ کار ہے وہ بھی بتاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم سر بہت بہت آپ کو مبارک رمضان کا مہینہ. شکریہ، آپ کو بھی مبارک. کیا سر یہ عبادات کا جو سلسلہ رمضان المبارک میں شروع ہو گیا ہے، اس میں کیا چیزیں ہمیں کرنی چاہیے روزے کی حالت میں یا کیا نہیں کرنی چاہیے، عبادات کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اچھا، اس سے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو فلسفہ ہے رمضان کیا ہے، اس کو ہمیں ناظرین کے لیے تاکہ اس کو سمجھ لیں. دیکھیں، ہمیں بھوکا پیاسا رکھنے سے خدا کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. یہ بیسیکلی ہمارے نفس کی جو ہے نا اس کی پاکیزگی کا یہ سارا عمل ہے، ایک ایکسرسائز ہے کہ تاکہ مسلمانوں کو، انسانوں کو بہتر انسان ڈالا جائے، مسلمانوں کو، تاکہ دوسرے کا احساس کرے. ٹھیک ہے. فلسفہ یہ نہیں کہ ہم جو ناجائز کمائی کی ہے، رشوت لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، راہ چلتی عورتوں کو تاڑتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں اور روزہ رکھا ہوا ہے. روزہ بھوکا پیاسا رکھنے کا نام نہیں ہے. اس سب فلسفے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. وہ پورا یہ ایک ایکسرسائز ہے ایک مہینے کے لیے، تاکہ انسان کو، جو مسلمان ہے، ان کو ایک بہتر انسان میں ڈالا جائے. اگر وہ ہمارا قلب ماہیت نہیں ہوتی، بہتر انسان نہیں ہم مانتے، تو یہ جسٹ ایک بھوکا پیاسا رہنے کی صرف ایک ایکسرسائز ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو کافی لوگ ہیں جو کہ روزہ رکھتے ہیں اور سو جاتے ہیں، فجر کی نماز ادا کر کے سو جاتے ہیں، اور کچھ تو میرے خیال سے نماز بھی نہیں ادا کرتے، جو کہ میں نے کبھی زندگی میں روزہ نہیں چھوڑا. روزہ رکھتے ہیں، سو جاتے ہیں سحری کر کے، اور افطاری کے 5 منٹ اٹھ جاتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے کیا میسج ہے؟ ہاں، یہ انہوں نے دیکھو، خدا ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ عبادت کے ٹائم پہ عبادت کریں، کام کے ٹائم پہ کام کریں، جب آرام کا وقت ہے تو آرام کریں. اب یہ نہیں کہ یہ پورا بیکار، پریکٹیکلی دیکھا گیا کہ لوگ بیکار بن جاتے ہیں، وہ سوتے رہتے ہیں. روزہ یہ نہیں کہ انسانوں کو، مسلمانوں کو بیکار کرنے کے لیے، خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ آپ بیکار بالکل مردے کی طرح پڑے رہیں. اپنے کام کاج کریں، ریسٹ کرنے کے ٹائم پہ آپ ریسٹ کریں. تو یہ نہیں کہ رکھ لیا اور دوسرا کے احسان جتلا دیا کہ خدا نخواستہ کو خدا کے اوپر ہم احسان کر رہے ہیں یا دوسرے مسلمانوں کے اوپر کر رہے ہیں، یا بناوٹ شو آف کرنا. پھر اس میں جو احتیاط نہیں کرتے کھانے پینے کا، آپ دیکھ رہے ہیں گھر میں جو انسان اس کی ایوریج 2.5 سے 3 گنا بڑھ جاتی ہے، ہم زیادہ کھاتے ہیں. یہ کیسا رمضان ہے؟ قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، کھاتے بھی ہم زیادہ ہیں، اور سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ اس کے بعد ملنا ہے کہ کبھی نہیں ملنا. تو یہ بھی اس کی روح کو ہی نہیں پتا لوگوں کو، فلسفے کا ہی نہیں پتا کہ رمضان کا مقصد کیا ہے، فلسفہ کیا ہے اس کے پیچھے. یہ بھوکا پیاسا رہنے سے پھر وہ تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، بہت زیادہ مرغن غذائیں کھاتے ہیں. تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں، یہ الٹا نقصان ہے صحت کے لیے. جب خاص طور پر افطاری جب آپ کرتے ہیں مرغن غذاؤں سے، بہت زیادہ آئلی چیزوں سے، یہ الٹا نقصان ہوتا ہے صحت کے لیے. اور اس طرح یہ سوئے رہنا، اپنا کام کاج کریں، اپنا روزہ رکھ کے آپ یہ جو شام تک سوئے رہتے ہیں لوگ، ایک عجیب سا ماحول بن جاتا ہے افراتفری کا. اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کی آڑ میں، روزے کی آڑ میں، اور دوسرا جو ناجائز فروشی ہے، آئلی چیزیں کھا کر، پراٹھے شراٹھے کھا کر، تو پھر اتنے گھنٹے سونا واقعی یہ ایک بیماری کا ہی باعث بن سکتا ہے. تو اچھا سر، روزہ کس ایج سے سٹارٹ، مطلب کم سے کم کتنی ایج میں روزہ رکھنا چاہیے، اور جو بزرگ ہیں ان کے لیے کتنی ایج تک ہے کہ وہ کتنی، مطلب چھوٹ روزہ جو ہے نا، بزرگ جو ہے وہ کتنی ایج تک روزہ رکھ سکتے ہیں، یا ان کو رکھوانا چاہیے یا نہیں رکھوانا چاہیے؟ اس میں تو یہ ہے کہ استطاعت ہے. یہ نہیں کہ خود فیصلہ کر لے کہ جی میں نہیں رکھ سکتا ہے کہ جوان یا بوڑھا آدمی. یہ ہے کہ جو اگر ڈاکٹر یا طبیب حاضر اس کو اگر کہہ دیتا ہے آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، پھر اپنے طور پر نہیں، اپنے طور پر تو ہم سب کا دل ہی نہیں کرتا کہ روزہ رکھنے کو. اس کے لیے نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ پھر اس کی آڑ نہیں لینی. مطلب کہ یہ بزرگوں پہ بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا نوجوان نسل کو سب پہ ہے. لیکن یہ کہ ڈاکٹر کہہ دے کسی کے لیے صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، اس کے لیے ان کو زیادہ بھوکا پیاسا رہنا نقصان ہو سکتا ہے صحت کو. تو پھر وہ تو جو چھوٹے بچے ضد کرتے ہیں،
बच्चे रखते हैं, शौकीन होते हैं, छोटे रखने बच्चे में जो चीज़ें जिद बेशक करते हैं, वो- मतलब बड़ों के साथ, माँ बाप के चलो, साथ एक वालिदैन के एक्सरसाइज साथ आदत तो मुझे, पड़ती है ना, इस तरह रोजा है। रखवाएं। हाँ, हाँ। तो बच्चे को किस एज में आपको चाहिए कि उसको पाबंद कर दे रोजे के लिए? नहीं, पाबंद नहीं किया जा सकता उसको, वैसे तो है इबादत का 12 साल का कहा गया है और मुख्तलिफ रवायात में मुख्तलिफ आती हैं, लेकिन आमतौर पर यही है कि 12 साल का बच्चा रख सकता है। अगर छोटा भी रखना चाहे तो रख सकता है, ममानियत नहीं है। आप जो बिल्कुल छोटे बच्चे बात का रखते होते हैं, जिसे कहते हैं कि वो चिड़ी रोजा या टैडी जी रोजा, जी बिल्कुल छोटे- बिल्कुल, छोटे- अक्सर देखा कि 5-5, बच्चे वो 6-6, 7 साल हाँ के- जी, हाँ। वो 12 बजे वो खत्म हाँ, उनका रोजा, 12 बजे बस हाफ डे में ही रोजा हाँ, उन्होंने हाँ, खोल लिया। बिल्कुल, वो भी कर सकते हैं। तो सर जी ये तो आ गया बच्चे और बुजुर्ग। अच्छा, हामला खवातीन के लिए उनको रोजा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? ये डॉक्टर उसकी राय, उसकी कंडीशन देखते हुए बेहतर बता सकता है। आमतौर पर यही होता है कि वो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप बाद में कज़ा कर लें इसका, ये कंसेप्ट मतलब बाद में रख लें, या ये होता है कि उससे सिलसिले में आप किसी को रखवाना नहीं होता, या लोगों को सहरी और जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसकी सूरत में अल्लाह ठीक है। ताला वो कंपनसेशन हाँ। कर देता है, उस तरह तलाफी हो जाती है उनकी। हाँ। बहुत खूबसूरत बात आपने की है सर, और ये हमारी जो नाज़रीन है उनको भी इस चीज़ की नॉलेज मिल गई कि अगर आप इस हालत में हो कि आप रोज़ा नहीं रख सकते तो आप किसी को इफ्तारी करवा दें, सहरी करवा दें, तो वो आपका अल्लाह पाक जो है ना उसमें ही वो उधर आपका आपकी हाँ उतना ही कबूलियत हो जाती है, अजर मिल कबूलियत जाता है। वो हो जाती है, आपको उतना गुना ही सवाब मिलता मिल जाता है। है, तो मिल जाता सही है। साहब, ये जो अभी रमजान उल मुबारक बरकतों का महीना है, नो डाउट ये तो सबको ही पता है कि माशाल्लाह से रमजान उल मुबारक बड़ा बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है, और इसकी इसमें जो बरकतों की बात है ना, बरकतें हमारे मुआशरे में कहीं नजर नहीं आ रही। भी आती है नजर, खासतौर पर ये जो खाने पीने का काम करने वाले हैं और जो कपड़े जूते बेचने वाले हैं, तो इन पे बरकतें तो नजर आती हैं। इनको देखें, ये तो माशाल्लाह 3-3, 4-4 गुना इन्होंने कीमतें बढ़ाई हुई हैं। बर्क तो वही ना, हमने असल में रमजान को समझा नहीं है, रोजे को, इसका सिर्फ भूखा प्यासा रहने को समझी, बाद किसी को बहुत महदूद कॉन्सेप्ट है हमारा। मैंने जैसे अर्ज किया था कि ये नजर का भी रोजा है, बिल्कुल रवैये का भी है कि आप बिल्कुल। दूसरों से कैसे लगते हैं, किसी के मुताबिक बात को मान्य तो नहीं कर रहे, झूठ तो नहीं बोल रहे, रिश्वत तो नहीं ले रहे, कोई और मिलावट तो नहीं कर रहे, किसी किस्म की गलत, किसी के साथ कोई अहदो पैमाने में कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो ये जब होगा तो बरकतें फिर आएंगी। तो ये बरकतें इसलिए हमारे नजर नहीं आ रहे कि हमने इसको एक मैकेनिकल चीज बना दी, इसकी रूह, इसका फलसफा उसको ना समझे हैं, ना हमें कोई जरूरत है समझने की, तो उसको हम समझते हैं कि हमें जरूरत ही नहीं, जबकि उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है हमें समझने की। जी बिल्कुल, फलसफे को सईद साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि बरकत जो है ना, ये जो हम कहते हैं ना कि रमजान मुबारक बरकतों का महीना है, वो बरकत जो है ना, वो बरकत जिसे नाम, वो बरकत का असल मेनी ये है, उसका मतलब ये है कि आपका जो हमसाया भूखा है ना, उसको पूछो। कोई आपका करीब भूखा बैठा है और आप 5-5 डिशेज रख के बैठे हैं, उसको पूछो। बरकत ये है आपके ईमान में। सही साहब, रमजान उल मुबारक के महीने में कहते हैं कि जो शैतान है वो कैद हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे काम होते हैं मुआशरे में जो कि उसमें साफ साफ शैतानियत नजर आती है। इसके पीछे क्या फलसफा है? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपका सवाल है और बड़ा फिक्री सवाल है, इसके ऊपर बिल्कुल एकेडमिक डिबेट होनी चाहिए। ये वाकई है कि अगर बंद हो जाता है तो बड़ा सोचने का सवाल है, तो फिर ये जड़ा है, बल्कि रमजान के दौरान ही हो रहे होते हैं। मसलन क्या रिश्वत वाला नहीं लेता, वो कहता है जिसके बाद ईदानी मैंने लगानी जी, बेईमानी, मिलावट, झूठ, औरतों के साथ ज्यादतियां, उनको देखना बुरी नजर से, बुरे बुरे कमेंट्स करना, क्या ये नहीं हो रहा माशरे में? ये इस दौरान भी रहता, अब तो कैद हो गया, फिर बुराई। शैतान असल में एक तो ये सिंबॉलिकली एक ये भी फिलॉसफिकल बात है कि एक सिंबॉलिकल मीनिंग है, शैतान भी एक सिंबलिज्म है। तो ये वही है हमारे अंदर, उसी को हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि ये हमारे अंदर का शैतान है। क्या बात है, जिसे हम जिसे बाहर खारिज में ढूंढते हैं ना, शैतान को हम सोचते हैं खुद कैद करना है, हमने बाहर है, वो इंसान के असल के अंदर ही है, जो नफ्स है ना उसका कैद करना। हाँ, उसका जो अंदर नफ्स हमारा है, असल में वो शैतान है जो उसको बुराइयों पे उकसाता है, हर वक्त वो उसके लिए अपने नफ्स की पूजा करता है, ये शैतान है। तो इसके दौरान भी करते हैं, इसके बाद भी करते हैं। दूसरा अक्सर लोग रख लेते हैं रोजा, कहते हैं जी 1 महीना रोजा हमने रख लिया जी अल्लाह के लिए। अच्छा, मतलब ये तो तसव्वुर ही गलत है कि 1 महीने का क्या यार, हर लम्हा आपका खुदा इबादत है। हमारा तो तसव्वुर यह है कि जो दम गाफिल सो दम काफिर, जो लम्हा खुदा की जात से गफलत में गुजरे वो लम्हा कुफर है। ये कहते जी रोजे रख लिए,
बाकी सारी गलत कारियाँ इस दौरान भी की और इसके बाद फिर वो जारी रखी, ये नहीं है। और हर दम खुदा और जात से, खुदा की याद से क्या मुराद है, ये बड़ा आम सवाल है इसमें। वो ये है कि अगर तो आपको खुदा याद है तो इंसान अगर कोई झूठ बोलने लगता है, कोई मिलावट करने लगता है, कोई रिश्वत लेने लगता है, औरतों के मतलब गलत बातें करने लगता है, कोई गलत नीयत रखता है, अगर खुदा की याद होगी वो तो हो ही नहीं सकता कि ऐसा करे, उस वक्त उसके जहन में खुदा की याद नहीं होती, फिर ही वो इस तरह के शैतानियां मारता है। बिल्कुल। अब इसको फलसफे को मैंने वही कहा ना, समझने की बड़ी जरूरत है हमारे, कि इसको शैतान जब समझेंगे तो को कैद करें, फिर हाँ अपने अंदर के शैतान वो एक महीने के लिए नहीं, पूरे साल के लिए करना चाहिए। हाँ हर दम। तो खुदा की ये याद से मुराद है हमें, और खाने पीने में भी एहतियात करें, और फिर ज़ाहिर है मेडिकली भी बड़े केसेस आते हैं इस तरह के, हैजा हो गया और इस तरह के, तो इसमें भी हमें एहतियात की जरूरत है। हाँ जी, इसमें बड़ी अच्छी आपने बात की है, और ये नाजरीन के बड़ी मतलब की बात है ये भी, क्योंकि इन्होंने अभी सहरी इफ्तारी करनी है और इसमें खाने पीने का, जी बिल्कुल, मैं कहती हूँ जहाँ एक डिश बनती है ना, एक डिश बनती है, फिर रमजान में लोगों ने बड़े प्लान किए हैं, ये भी बनाना है, ये भी बनाना है, सहरी में ये भी करना है, ये भी करना है, इफ्तारी में हमने ये डिश चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। तो ये चीजें हम कर तो लेते हैं, बाद में हमें पछताना पड़ता है, क्योंकि बाद में हमें डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। सही साहब, इसके साथ ही हमारे नाजरीन जो देख रही हैं, रोजेदारों के लिए एक अच्छा सा मैसेज दे दें। मैसेज यही है कि मैं अपने इसी प्रोग्राम को सम अप करता हूँ कि हमें खुदा को हमारे ये भूखा प्यासा रहने से कोई गर्ज नहीं है। उस समय हमारे ये सिर्फ एक एक्सरसाइज है, ये मंथ हमें एक बेहतर इंसान में डालना है। तो उसके लिए हम फिर एक बेहतर इंसान में डालेंगे कि हम फ़लसफ़ा इबादत को, फ़लसफ़ा रमज़ान को समझें कि अगर भूखा प्यासा सिर्फ रहना है तो फिर हम नहीं समझते, आई एम सॉरी, हम नहीं समझे, क्योंकि इस दौरान भी गुनाह बुराइयां सरजद हो रही होती हैं और इसके बाद तो फिर भी जारी रहती हैं। तो इसको ज़रूरत है कि ताकि आप एक बेहतर इंसान बने। जी, तो नाज़रीन, आपने, उम्मीद करती हूँ कि इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा होगा। मेरी भी एक रिक्वेस्ट है कि रोज़ा रखें, लेकिन रोजे को सिर्फ वो ही सर वाली बात आ गई सही साहब वाली कि मुंह को ताला लगाने का ये रोजे का नाम नहीं। रोजे की बड़ी बाबरकत महीना है और बड़ी बरकतें हैं रोजे की। रोजे की बरकतें ये है कि अपने आस पास के जो लोग हैं उनका भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, खाने पे कंट्रोल रखें, ज्यादा खाना नहीं खाना, क्योंकि आपकी सेहत के लिए भी ये नुकसानदेह है। तो अच्छे से अच्छा खाएं और अच्छे से अच्छा सोचें, क्योंकि हम बात करते हैं सोच को बदलने की, ना कि ट्रेंड को फॉलो करने की। अपनी मेजबान हिना शहजादी को दें इजाजत, नेक्स्ट आपको फिर मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।